Hi, everybody. Welcome to Just Too Filmy. This is The Huddle, and we've got Amarkhan! And to help me with this amazing conversation, we've got Pulkit Kochar. Give him a hand. Sapan Verma. Shreya Pilgaonkar. Zahan Kapoor. And Prashasti Singh. 3 Idiots हमारी पहली 5 स्क्रीनिंग में हमको पता चल गया था कि कुछ है ही नहीं इसमें। मतलब इतनी पसंद आ रही है लोगों को। अच्छा। Can I say the word 60? Yeah, of course. Okay. अभी रिसेंटली मैं सटे आ गया हूँ। जस्ट मुझे लीप ऑफ फेथ नहीं, मुझे प्रूव करना पड़ा एक हिट के बाद दूसरी हिट। बट आफ्टर अ पॉइंट उनको लगा कि पता नहीं कुछ तो है, इसका चलता है भाई। ये परफेक्शनिस्ट है। If you look back और अगर आपको कुछ किरदार के बारे में कुछ चेंज करना हो तो क्या करेंगे? आपने कहा लगान में भुवन को मैं बियर्ड दाढ़ी दूंगी। I said यहाँ आपकी पूरी कहानी है कि पानी नहीं है। और ये आदमी रोज सुबह उठ के शेव वेव कर रहा है। आपने एक बिल्ली को लटकते हुए देखा, आप बहुत खुश हो गए। आपकी त्वचा का राज क्या है? So some of the, जिसे मैं कहते हैं ना, young guns, they are the brightest, and I know for a fact that they will help us have a really fun conversation. And also, I don't think any of you all have met. So you all have never met Amir, you all have never worked with him. I met Zahan a few times at Prithvi. and we have met. Yes, very briefly. But किसी से काम नहीं, नहीं, किसी के साथ not काम नहीं really. किया है. So here we have a bunch of questions for you. Are you Sure. ready? Yeah, let's go. Okay, the most obvious first question is obviously आपकी त्वचा का राज क्या है? I have to say this, guys. You've defied like age. Do you feel that? Can I say the word 60? Yeah, of course. I have just He cut turned. a huge cake recently. But you know, how does that do that for अभी an actor? recently मैं सटे आ गया हूँ. Just reach that stage. No, for an actor, age is something that is supposed to scare you. Did it ever scare you? You know, when जब मैं शुरू में आया था ना, तो मैं बहुत यंग लगता था. और इतना यंग लगता था कि मुझे बहुत इरिटेशन होती थी. एज एन एक्टर मुझे लगता था कि यार मुझे सब बॉयज टाइप के रोल्स मिल रहे हैं. यू नो, मुझे जो रोल चाहिए मुझे नहीं मिल रहा है. बिकॉज पीपल वोंट सी मी एज दैट. तो आई रिमेंबर ऋषि कपूर टेलिंग मी कि इस वक्त तुम इरिटेट हो रहे हो, लेकिन बाद में तुम बहुत इस चीज को हाँ, बिकॉज यू लुक यंगर फॉर मच लॉन्गर. I swear. So he said you're going to thank your whatever genes later on. Right now you're cursing them, but later on you'll thank them. Yeah. So yeah, I guess, but that's something you have no control over. Matlab, how do you control that? Yeah. No, because we are so used to thinking of age as an enemy, right? And that is the question, especially for actors. So अब तो वो irrelevant हो गया. आप actually 80 साल के हो physically. मैं आपको 18 का दिखा सकता हूँ. VFX, this, I mean, 80 to 18 might be too much, but you can really change your age a lot. Earlier, you couldn't play with your age so much. that's so true. Now you can play with your age a lot more. Yeah, You can absolutely. be older, younger, anything. Also, earlier the idea that your peak time is only in your 20s was very strong. But today I think that narrative is also changing because some people are doing their best work in their 70s and 80s even. And even for women, वो 10 साल का window ही दिया जाता था ना, that then directly you're sort of this thing. But now that's changing, I feel, in a way. Actually, conventionally, actors की life 7-8 साल ही होती है. By and large. By and large. Yeah. I just read that you've done 40 years of acting. Me? Yeah, लगभग. Don't count the मतलब वो बचपन का जो रोल किया था वो सब काउंट नहीं So करना है. 30? QS Cutie was 88. तो Yeah. कितना हो गया? 36 years. 36 years. 35 Yeah. 36 साल हो गए. Yeah. Any favorite films or questions? Oh yeah, so I recently went for Gulam because like honestly I have seen all other movies that released and somehow I missed Gulam because I'm a 95 kid, so I was too small when Right. It Gulam came out in released. 97, I think. Yes, and other like Andaz Apna Apna, to we all watch reruns, so I missed. So I went for Gulam, and in the second half, the like Meeta Vashisht tells you, she tells you कि सिद्धार्थ तुम्हारी आंखों में देख के लगता है कि तुमने खुद को पा लिया है, which paraphrases to you have got your voice.
and I feel that is so like coincidental, because around that time I feel you as an actor was getting your voice, because after Gulam you did Sarfarosh, which I feel is the best aged 90s movie, because we recently watched on the 25 years of I was there, and like, do you agree with that, like around that time you found your voice, and then you did Lagan and Dil Chahta in the same year? I really don't know when I found my voice. I've been struggling to find my voice from the beginning only. I really don't know how to answer that question. No, because even like any art form, like people keep giving you this advice ki keep doing it and you will find your voice. So this is me asking for myself also as an artist ki when Actually, do you it find depends your what voice? you mean by find your voice. If you अगर आपका मतलब ये है कि आप जो कहना चाह रहे हो वो आप कह रहे हो, वो तो मैं शुरू से कर रहा हूँ. तो मैं अपनी आवाज में बोलने की कोशिश तो शुरू से कर रहा था. कितना सक्सेसफुल हुआ वो अलग बात है. But I have always been trying to speak my voice from the very beginning. तो I don't think it may मतलब और लोगों को नजर आया होगा कि अब उसकी आवाज से लग रहा है कि उसको मिली है. बट वो शुरू से मेरा अटेम्प्ट वही था. होता क्या है कि जब आप शुरू में किसी भी फील्ड में आते हैं तो आपको सक्सेस मिलने में वक्त लगता है, और जब तक आप सक्सेसफुल ना हो तो लोग आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी आवाज थोड़ा कम सुनते हैं. योर ओपिनियन मैटर्स लेस, बिकॉज भैया आपने किया कि आप तो अभी नए नए आए हो, आप क्या बता रहे हो. सो आप जो कहना चाह रहे हो वो कम सुनाई दे, मतलब यूनिट में या जो आसपास के लोग हैं जिनके साथ काम होता है वो कम तवज्जो देते हैं आप पे, बिकॉज दे फील के यार. सो इट्स ओनली व्हेन यू स्टार्ट इंडिकेटिंग थ्रू योर वर्क कि भाई इसको काम आता है, फिर लोग सुनना शुरू करते हैं आपकी बात. वैसे हर आदमी अपनी आवाज तो बुलंद करने की हमेशा कोशिश करता है, वो सुनी नहीं जाती है, वो अलग बात है. Yeah, I remember one thing that you were talking to me about. Yes. Oh my God, I love that story. That is actually so quintessential brand Amir Khan, because I watched one of your interviews जहाँ आपने कहा है, जहाँ पूछा गया था सर को कि if you look back और अगर आपको कुछ किरदार के बारे में कुछ चेंज करना हो तो क्या करेंगे. Now with his body of work he could have said anything. Instinctively आपने कहा लगान में भुवन को मैं बियर्ड दाढ़ी देता, बिकॉज यहाँ पे फैमिन चल रहा है, वो बड़ा शेव कर रहा है हर रोज. ये मेकिंग ऑफ में भी है ना. हाँ मतलब सी आई हैड बिग फाइट्स विद आशुतोष. आई सेड यहाँ आपकी पूरी कहानी है कि पानी नहीं है, पूरी कहानी ये है. आई लव दैट. और ये आदमी रोज सुबह उठ के शेव वेव कर रहा है. मतलब गांव वाले तो एक तो उसको भुवन तेरे को पानी कहाँ से मिल रहा है, कहाँ छुपा के रखा है और तू तूने? शेव कर रहा है. मतलब तो आई वाज लाइक हाउ कैन आई बी शेविंग, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. No, but these details. आई वांट यू टू लुक गुड. फेयर आर्गुमेंट. मुझे आप ऐसे दिख रहे हो, मुझे आप ऐसे अच्छे दिख रहे हो, बाकी मुझे लॉजिक में नहीं जाना. तो फाइनली आई गिव इन, बट आई वाज वेरी अपसेट. तो मैंने उसका एक तोड़ निकाला. क्या? मैं सुबह में शेव नहीं करता था, क्योंकि मैं सुबह शेव करूंगा तो एकदम चिकना दिखूंगा. तो मैं शेव करता था रात को सोने से पहले, तो सुबह तक वो 12 घंटे का 8 घंटा व्हाटएवर सम ग्रोथ वुड कम. या But इतना भी डेडिकेशन होना to care for that detail which इट for मेक्स मी your- फील कंफर्टेबल. Exactly. मैं रात को शेव, मतलब जिस दिन मैं रात को शेव करना भूल जाता था, अगले दिन मैं इरिटेट होता था. शिट, अभी मैं शेव करूंगा तो एकदम क्लीन लगूंगा. हाँ, सो अब वो मेरे माइंड में ही है. आई डोंट थिंक ऑडियंस वुड हैव नोटिस्ड इट. व्हेन यू रीड अ स्क्रिप्ट, पहली बात तो जोक आप कैसे गेज करते कि ये ऑडियंस को 2 साल बाद मूवी रिलीज होगी तो अच्छा लगेगा कि नहीं. और मल्टीपल रीडिंग्स करते हैं, एंड व्हेन यू शूट आल्सो अ फिल्म यू डू लाइक मल्टीपल टेक्स, राइट. कई बार 10 15 टेक करते हैं. तो डज इट गेट लेस फनी विद एवरी टेक? डू यू समटाइम्स फील लाइक पता नहीं है फनी है कि नहीं? तो हाउ डू यू गेज द कॉमेडी इन अ फिल्म इज माय क्वेश्चन. जाकर खुद हंसी नहीं आई उस जोक पे. हाँ, लाइक क्योंकि ह्यूमर इज सो सब्जेक्टिव आल्सो कि किसी को बहुत फनी लगा होगा, एक एक्टर को दूसरे को नहीं लगा हो. तो आई थिंक बाय एंड लार्ज जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो या सीन पढ़ते हो, तो अगर वो मतलब इट्स सपोज्ड टू बी अ फनी सीन, हंसी आनी चाहिए लोगों को, और आपको हंसी नहीं आ रही पढ़ते वक्त, तो आपको फौरन समझ में आता है कि ये शायद ये लैंड नहीं होगा. हम लोग टेस्ट तो नहीं करते हैं कि यार ये लाइन फेंकें, बट आई थिंक यू हैव अ सेंस ऑफ एटलीस्ट यू कम टू नो हमको क्या हंसी आ रही है यार. So the creative group, the director, the writers, actors, when we start reading it, we come to know कि ये pop हो रहा है कि नहीं हो रहा है. और जब वो नहीं हो रहा है तो then we alter it little bit. Did it ever happen that you thought this joke would work really well and you saw it not work? All or the time. opposite way? All the time. हाँ. हाँ. मैंने बहुत जल्दी फिल्में थिएटर में देखना शुरू किया. मतलब मेरी पहली फिल्म से मैं हमेशा थिएटर में देखता हूँ अपनी फिल्म. और उससे मुझे एक
मतलब इतनी चीज़ें सीखने को मिली. फॉर एग्जाम्पल जब हम जब फिल्म देखते हैं तो हमको लगता है कि ये अच्छा सीन है, वो बुरा सीन है, इसमें बड़ा अच्छा रिएक्शन आएगा, ये जोक बड़ा अच्छा है. जब आप थिएटर में ऑडियंस के साथ देखते हैं तो वो कंप्लीटली अलहदा चीज़ों पे रिएक्ट कर रहे हैं. वो वहाँ रिएक्ट कर रहे हैं जहाँ आपने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे क्यों रिएक्ट किया इन्होंने, यार मुझे कुछ समझ में नहीं आया. और यहाँ पे हमको लगा था रिएक्शन आएगा, कुछ ठंडा आया रिएक्शन. सो दैट हैपेंस ऑफन एंड दैट्स अ लर्निंग प्रोसेस. आप फिर सीखना शुरू करते हो जब आपने काम किया और आपने ऑडियंस के साथ देखा. ऑडियंस के साथ नहीं देखा तो फिर आप नहीं सीख रहे हो. यू हैव टू वॉच विद द ऑडियंस, देन यू कम टू नो कि यार एक्चुअली यू नो आप जो कर रहे हो और उसका रियल मतलब थिएटर के अंदर उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, यू कम टू नो. फॉर एग्जाम्पल क़यामत से क़यामत तक में एक शॉट था, मैं जूही को मतलब हम लोग बाहर रहने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं बाइक पे आता हूँ, उसकी मंगनी चल रही है, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो उसके कपड़े पैक कर रही है, हम लोग भागने वाले हैं. तो मंसूर को 2-4 शॉट लेने थे कि मैं सड़क पे वेट करके मैं बंगले पे देखता हूँ. तो आई एम सिटिंग ऑन अ बाइक. तो ही हैड सेड यू नो जस्ट गिव मी 2-3 ऑप्शंस, आई जस्ट वांट वेटिंग शॉट्स, पंच इन, जिसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब एडिटिंग में खाली काम आने वाले. तो मैंने ऊपर देखा, कट. आई जस्ट लुक्ड अप. अब एडिटिंग में हमने डाला कि वो रेडी हो रही है, कट टू आमिर बाहर वेट कर रहा है, उसने ऊपर देखा, कट. ये हो गया. अच्छा, अब फिल्म रिलीज हुई. फर्स्ट शो में बाइक का शॉट आया और मैंने ऊपर देखा और पूरी ऑडियंस में हो. तो मैंने देखा कि ये क्या हो गया. अच्छा, मैं, नुज़त, जुटशी, हम लोग सब साथ में थे. मैं बोला यार ये लोग हो क्यों कर रहे हैं. आई गॉट कंफ्यूज्ड. सेकंड शो, हो. Every time that shot used to come and I was like, yaar, why are they reacting to this shot? I have still don't understand why they used to feel कि पता नहीं कुछ हो रहा है यहाँ पे. या तो उनको मेरा चेहरा उस वक्त अच्छा लगा होगा. ये क्या, I don't know what No, it it's was. the penny drop. It's the penny drop. कुछ कि penny भाई drop नहीं था. भागने वाले हैं. नहीं वो कुछ penny drop नहीं है. penny drop moment नहीं था. वो पहले मैं आ चुका हूँ, मैं अच्छा. पार्क कर चुका हूँ. You know what is अच्छा, happening. There's no okay. surprise. Okay. बीच में एक शॉट है, he's looking, Random. वेट कर रहा है, वो कभी निकलेगी. It's just a shot to punch in to take. He is waiting, and they used to always react on that. And I used to always wonder why have they reacted. You know? Do you think they thought you can see her through the window No, or no. something? I think it was just the way I was looking or something they used to connect with. I don't know what. So- स्ट्रेस उनको फील हो रहा होगा आपका. नहीं stress नहीं. So I just feel that I think it's a learning process. जब आप जैसे थिएटर में जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपको फटाक से रिस्पॉन्स मिल रहा है. सिनेमा में वो नहीं होता. सिनेमा में क्या होता है, आपको आपके दोस्त लोग आके बोलते हैं यार वो फिल्म बड़ी अच्छी है, तेरा काम अच्छा लग रहा है. क्या पता क्या अच्छा लग रहा है. तो मैं तो खुद जाता हूँ. आप छुप के जाते हैं. हाँ, आई गो माई सेल्फ. नहीं तो मैं डिस्गाइज में भी गया हूँ शुरू में, पर उसमें बहुत मेहनत लगती है. कौन सा डिस्गाइज? आई वांट टू नो द डिस्गाइज. क्या है डिस्गाइज? दाढ़ी, मूंछ, ये सब मैंने किया था. हाँ, दिल, आई हैव सीन दिल इन द जो लगान में दाढ़ी नहीं आ पाई वो. आई हैव सीन यू नो लव मैंने देखी थी ओह आई लव दैट. थिएटर में. और वो फिल्म जो है, एक चीज मैंने बहुत बड़ी सीखी वो टाइम पे. क्या था वो, मैं बॉयश रोल कर रहा था. तो फिल्म के शुरुआत में वो सीन है कि गुलशन ग्रोवर और उसके जो दोस्त जो हैं वो किसी को मगिंग कर रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, आदमी को उसका ब्रीफ केस छीन लेते हैं, व्हाटएवर. तो सडनली मैं साइकिल से आता हूँ एंड आई सी के यहाँ पे कोई लफड़ा चल रहा है. एंड सीक्वेंस ये था कि मैं विदाउट गेटिंग इनटू द एक्शन, विदाउट गेटिंग ऑफ माई बाइसिकल, विदाउट एक्चुअली बीटिंग देम अप, किसी को धक्का दिया, किसी को ये दिया, उसको कंफ्यूज किया और वो आदमी को बचा दिया इन अ क्लेवर वे, और मैं भी निकल गया. अब हुआ क्या कि थिएटर में मैं फिल्म देख रहा हूँ. अच्छा, मैं ऑडियंस में हूँ, स्टॉल में, डिस्गाइज में हूँ, किसी को नहीं पता मैं बैठा हूँ. गेटी गैलेक्सी की बात कर रहा हूँ मैं, सिटिंग इन गेटी गैलेक्सी. तो जैसे वो लोग परेशान कर रहे थे उस आदमी को, तो ऑडियंस इरिटेट हो रही थी. सडनली मेरा शॉट आया कि मैं बाइक, मतलब ही एंटर्ड दिस मोमेंट, द सीन. पूरा थिएटर सीटी वीटी, अरे अब मारेगा, ये करेगा, वो करेगा. जो रिएक्शन आया ना, उस रिएक्शन से मैं समझ गया कि ये हमने सीन गलत शूट किया. नाइस. तो उस सीन के बाद वो लाइक कुछ किया ही नहीं इसने यार, ऐसे चला गया. सो आई रियलाइज दीज आर ऑल वेरी फंडामेंटल थिंग्स. वो जो ऑडियंस थी, दे वांटेड मी टू बीट अप दोस 4 पीपल. They didn't care कि I am an 18-year-old, I am not an action hero. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. They wanted कि इस वक्त हमारे हीरो है, वो 4 लोगों को मारना चाहिए. And I was like, So you're building up expectation and so you have to handle it well. You know, you learn a lot of things. When you're watching with the audience, आपको समझ में आता है कि आप बोलना क्या चाह रहे थे
और वो रिसीव कैसे हो रहा है। मेरी पहली फिल्म से हम लोग टेस्टिंग बहुत रिगरसली कर रहे हैं, मंसूर और मैं। तो टेस्टिंग इज अ प्रोसेस आई बिलीव इन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। क़यामत से क़यामत तक से लेके अब तक सारी फिल्में हम लोग ऑडियंसेस को दिखाते हैं, मतलब नॉन फिल्म पीपल, और उनके साथ बैठ के हम लोग समझते हैं कि हम लोग कहाँ सही कहाँ गलत जा रहे हैं। अभी भी आप करते हैं हाँ, ये हाँ। प्रोसेस? कितनी बार? All my films have done that. No, but like how many sort of times do you screen it to get a sense Oh, before? that depends from film to film. 3 Idiots हमारी पहली 5 स्क्रीनिंग में हमको पता चल गया था कि कुछ है ही नहीं इसमें। मतलब इतनी पसंद आ रही है लोगों को। नहीं नहीं, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग प्रॉब्लम ढूंढते हैं ना। 3 Idiots का रिएक्शन ये आता था कि आप दोबारा लगाइए, हम अभी देख लेंगे दोबारा। सो वी रियलाइज कि इट वाज अ वन साइडेड यूनानिमस रिस्पांस। तो उसके खाल एक 7-8 स्क्रीनिंग हुए थे, बिकॉज वी गॉट टू नो वेरी अर्ली कि यार एक ही रिस्पांस आ रहा है और वो वन साइडेड आ रहा है। You watched Three Idiots, you said. No, I have this vivid memory of Christmas ka time tha, it just released in December. And Christmas lunch was happening. Dabbu uncle was at home and he was raving. He said, 3 Idiots better screenplay than Diwar. Just like better screenplay. Like he was gushing so much, and I hadn't seen it at the time. But it's that response. So some films take longer, like, you know, Delhi Belly took very long. So Delhi Belly first cut was not working, second cut was not working, third cut was not working. For example, Tare Zameen Par फर्स्ट कट वर्क नहीं हो रहा था, तो हमने काफ़ी बहुत सारी फिल्में हैं जो टेस्टिंग के दौरान यू नो यू कम टू नो वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, वेयर यू गोइंग राइट। सो एक्चुअली टेस्टिंग इज अ प्रोसेस दैट हेल्प मी अ लॉट। But tell me, मुझे बहुत हेल्प does it ever go to your heart कि किसी को ना, for example मूवी लाइक दिल्ली बेली और तारे ज़मीन पे, कि दिल से आपने एक विजन एग्जीक्यूट किया and you watching with the audience and somehow वो जैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो बिल्कुल अलाइन नहीं हो रहा, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। हाँ, एंड यू नो एक होता है कि ऑफ कोर्स यू नो टेक्निकली ये फीडबैक है मैं इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ, बट एज अ क्रिएटर दिल टूट जाता है। हाँ, होता है आपके साथ? देखो, आप दिल आपका वैसे भी टूटने वाला है। अगर आपने टेस्ट नहीं किया तो ऑडियंस आपका दिल तोड़ने वाली है। उससे बेटर है कि ये लोग मेरा दिल तोड़ दें, ऑडियंस के लिए हम लोग अच्छे। हाँ, तो मैं 10 लोगों से गालियां सुन लूं, 10 लाख से ना सुनूं। टेस्टिंग के जो- बाद भी लेकिन कभी गलत कभी कभी होता है, बट दैट्स वेरी रेयर, chance also. वेरी रेयर। क्योंकि क्या है, तो आपने पूछा कितने दफा टेस्ट करते हैं, तो कई फिल्में हम लोग ने 20, 30, 40 स्क्रीनिंग्स की हैं, और हर स्क्रीनिंग में 20-25 लोग होते हैं, तो 1000 लोग, 2000 लोग एंड अप सीइंग द फिल्म, यू नो, ओवर। सो इट डिपेंड्स। अगर आपकी फिल्म जैसे मैं क्या करता हूँ, जब तक एक बेसिक मिनिमम अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया तब तक मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। तो आई कीप ट्वीकिंग इट एंड देन समटाइम्स यू रीच अ पॉइंट वेयर यू फील के यार पता नहीं मतलब मुझसे अभी इससे बेटर नहीं हो रहा है, और रिएक्शन हमको अभी भी मिक्स्ड मिल रहा है, देन यू एट योर एंड ऑफ योर, यू नो, जो कुछ समझ में आ रहा था आपने कर लिया, तो वो भी हुआ है। How do you brace for that? Nothing, that's the truth. For example, अच्छा, कभी कभी फिल्में चल भी जाती हैं लेकिन आप खुश नहीं होते हो। जैसे कि पीके में मैं बहुत चली है, पीके बहुत बड़ी हिट है, लेकिन आई थिंक राजू एंड आई आर नॉट वेरी हैप्पी विथ उसका फाइनल जो रेजोल्यूशन हुआ, बिकॉज उसके माइंड में एक्चुअली कुछ और था। राजू के माइंड में जब उसने शुरुआत की थी लिखाई की, तो वो कहीं और जा रहा था। फिर उसको लगा कि यार अब इंसेप्शन आ गई है, इंसेप्शन में वही थॉट आ गया है, लोग बोलेंगे मैं इंसेप्शन को कॉपी कर रहा हूँ, हालांकि वो उसका खुद का ओरिजिनल थॉट था वो। हाँ, यू नो हाउ टू चेंज व्हाट यू फील अबाउट समथिंग। मतलब अगर आप इस वक्त आपको लाल रंग पसंद नहीं है, लेकिन अगर मैं आपके बचपन में जाऊं और उस चीज को मैं चेंज करूं तो आज आपको लाल रंग अच्छा लगेगा। तो हाउ यू कैन चेंज अ पर्सन्स विजन बाय गोइंग इनटू हिज माइंड एंड चेंजिंग समथिंग इन द बैक। तो वो उसका वो I थॉट saw an था। interview of him. He's like, मैं और अभिजात इंसेप्शन देखने गए और फिल्म खत्म होने के बाद सारा थिएटर चला गया, हम बैठे रह गए because we're like ये तो हमारी हम movie। लिख रहे थे। हाँ, अब क्या करें। तो उसमें क्या हुआ, फिर वो चेंज हुआ, फिर वो दोबारा चेंज हुआ, फिर जब हमने शूट किया, फिर हमने देखा, फिर हम लोग खुश नहीं थे, फिर हमने उन्हें रीराइट किया, तो सेकेंड हाफ में काफी हम लोग गोल गोल घूम रहे थे। फाइनली हमको लगा भाई अब इससे बेटर हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो आई रिमेम्बर राजू और मैं बात कर रहे थे रिलीज से पहले, तो ऐसे राजू यार
फिल्म तो हम लोग नहीं बना पाए जो हम लोग बनाना चाह रहे थे. हाँ मतलब आई वाज नॉट फुल्ली हैप्पी एंड नीदर वाज हिम. बोथ ऑफ अस वर लाइक जो हम करना चाह रहे थे वो फुल्ली नहीं हुआ. अभी दिस इज द बेस्ट दैट वी कुड मैनेज. बट लकीली चल गई और लोगों ने कनेक्ट किया बिकॉज उसमें बहुत सारी चीजें थी which were connecting with people, but we were not happy till the end and we couldn't figure out what else to do. But I had told Raju, I said Raju तू भूल जाना कि उसने भी सेम बनाया. क्यों कि फिर आप जो जिस धार से आप वो चीज कहना चाह रहे हो ना जो आपके अंदर से निकली है फिर वो डाइल्यूट हो जाती है. फिर आप सडनली कुछ और बोलना चाह रहे हो फिर वो मजा निकल जाता है. So I said forget it, let people say Inception से कॉपी किया. हम बोलेंगे हमने नहीं किया भाई. और हर फिल्म यूनिक होती है. आप समटाइम्स कॉन्सेप्ट्स मैच बट अ डायरेक्टर लाजू हु विल हैव हिज ओन टेक ऑन इट. सो मैं उसको बोलता गया कि तू मत चेंज कर. पर उसने बोला नहीं यार बहुत गालियां पड़ेंगी हमको चेंज करना पड़ेगा. 2 दफा चेंज हुआ. एक दफा इंसेप्शन की वजह से दूसरी दफा ओ माय गॉड. तो हमने सेकंड हाफ शूट किया ओ माय गॉड में तो उसने बोला यार ओ माय गॉड में तो ये पंच आ गया. I said, Raju, you were supposed to do a case like they did in Oh My God, like the second half. Like there was no, court case नहीं था. Court case नहीं था, but there were some similarities that were coming in. But I said that's because there's a thematic similarity. That's okay. Don't get so bothered about it. But Raju was no, I have to change करके उसने change किया. So that's the process, But testing has helped me a lot. मुझे testing से बहुत help मिली है. अंदाज अपना भी आपने ऑडियंस का देखा. हाँ. तो how was the reaction that time? हाँ अंदाज अपना का बहुत इंटरेस्टिंग था. मेरे जो दोस्त यार थे ना विकी केवल जो मतलब जिनको मैं वो टाइम पे काफी बुलाता था अभी भी आता है उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई थी. हाँ उन्होंने बोला इसमें क्या फनी है तुम लोग की जोक्स पता नहीं क्या है हम लोग को हंसी नहीं आ रही. तो मुझे बहुत गालियां पड़ी थी और उसमें हम लोग कुछ खास चेंज कर नहीं पाए थे क्योंकि अगर आपको कुछ चेंज करना है तो फिर डेट की जरूरत है ना. नहीं हो रहा है. और हमने टेस्ट किया लेकिन टेस्ट करके हम लोग करेक्शन कुछ नहीं कर पाए. हमने सिर्फ टेस्ट किया. बट आपको टेस्ट में समझ में नहीं आया क्या नहीं चल रहा. वी कुड नॉट फिगर आउट कि व्हाई. इट्स बीन अ लॉन्ग व्हाइल. मुझे हमेशा लगता था कि नहीं सही है तो मैं राज को बोलता था नहीं हमको चेंज नहीं करना है. और फिर जब रिलीज हुई तो हमको लगा हम रॉन्ग है. बट जब होम एंटरटेनमेंट में जनरेशन आफ्टर जनरेशन है सेट के सुपर फिल्म है सो देन फाइनली हम लोग वैलिडेट हो गए राज एंड मी. Because I felt those jokes were damn funny. They're damn funny, yeah. My favorite bit is in the end credits. Shakti Kapoor's name is Takti Kapoor Yeah. because he speaks SST. And I think he was saying, I love such he was being details. honest when he said, आया हूँ कुछ तो लेके जाऊँगा. The way this film was made. But I love sorry, at that time I thought it was Sapan, but it was your Rang De Basanti question, which I think is please ma'am. Rang De Basanti, released when I was getting into college. हाँ. और I think it's not an exaggeration when I say कि मेरा जो जनरेशन का यूथ है हमारा एक जो मॉरल बेंच मार्किंग है कि हम क्या कर रहे हैं हमने पढ़ लिख लिया हम यंग हैं देश को लेके हम क्या कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस मूवी से आता है. मतलब हम करें चाहे ना करें उस पे एक्ट दैट मूवी हैज सेट अ That effect on you, yes. So I have always been curious to know कि when you've been in that movie आपकी लाइफ पे आप as a person how you exist in the world, did that movie make an impact, did it make a shift, or a movie like that? I think it happens both ways. कुछ तो फिल्म का असर हम पे होता है और कुछ हमारा असर फिल्म पे होता है क्योंकि वो फिल्म बन कैसे रही है हम उससे बोलना क्या चाह रहे हैं. तो रंग दे बसंती में जो लास्ट के जो 4 रील हैं मतलब रफली 40 मिनट ओरिजिनल उसके टोटली अलग थे. हाँ राइटिंग में कैसे वो ओरिजिनली ये उसका एंड होता था कि यू रिमेंबर कि वो डिफेंस मिनिस्टर को शूट कर देते हैं. तो उसके बाद क्या होता था डिफेंस मिनिस्टर को शूट करने के बाद ये पूरा ग्रुप जो है स्कैटर होता था. 2 लोग रेलवे स्टेशन जाते थे टू गो ऑफ समवेयर. कोई कहीं जा रहा था बिकॉज दे डिडंट वांट टू गेट अरेस्टेड डिडंट वांट टू गेट कॉट. तो सब लोग निकलने की कोशिश करते हैं एंड हाउ ईच वन गेट्स कॉट एंड ट्रैप्ड एंड किल्ड. दैट वाज द एंड. तो मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन मेरा को ये था कि ये लोग ने कुछ गलत किया है क्या. उनके मन में उन्हें कुछ गलत किया है क्या. नहीं उनको लगता है सही किया तो क्यों भाग रहा है. तो ऐसे एक तो उनको भागना ही नहीं चाहिए. मैंने जिसको मारा है मेरे हिसाब से मैंने सही किया मैं क्यों भागूं. तो वो अगले दिन कैंटीन आते हैं कहीं नहीं भागते
मतलब अभी वो जो वर्जन है, वो कैंटीन में आके देखते हैं टीवी पे आदमी मर चुका है और उसको भारत रत्न मिल गया है। तो फिर उनको रियलाइज होता है कि हमने जो किया उसको तो उल्टा हो रहा है भाई, ये तो और हीरो बन गया। फिर उनकी झगड़ा होता है, वो लोग झगड़ा करते हैं कि यार यू नो nothing happened about this, and then they figure out what to do, and then they go to the radio station because they feel that they need to talk to people. जो भगत सिंह ने अपने टाइम में कोर्ट केस के थ्रू किया था, what he spoke is what spread people. So they need to speak now. So they go to a radio station, take over the radio station, and the character who's playing Bhagat Singh, which is Sid, he comes on the mic, and like Bhagat Singh had done many years ago in the court, here he does on the mic, and he explains why he's doing what and why did they do this. And very importantly, they explain, वो समझाते हैं कि हमको भी लगा violence is the solution, और हमने एक आदमी को मारा, but हमको realize हुआ कि उससे हमको कुछ नहीं मिला. So it's the first film which actually verbally tells you कि violence is not the answer. हमने violence किया, पर हमको रियलाइज हुआ कि उससे कुछ नहीं हुआ, तो फिर सोल्यूशन किया है, बी इन्वॉल्व्ड इन द कंट्री. कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, आपको उसको बनाना पड़ता है. जो गंदगी है वो जापान वाले अमेरिका वाले आके साफ नहीं करेंगे, आपकी गंदगी आपको ही साफ करनी पड़ेगी. तो आपको उस मट्टी में उतर के हाथ पांव थोड़े गंदे करने पड़ेंगे, बट यू हैव टू क्लीन दैट. सो बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड चेंज इट फ्रॉम विद इन वॉज द ओवरऑल थॉट ऑफ द फिल्म, विच इज द थॉट जो मैडी देता है हमको. Yes. Yes. तो ये हम लोग तो क्लाइमैक्स में तो हम लोग मर जाते हैं. वी टू जस्ट गेट शॉट ट्राइंग टू रन. तो ऐसे मेरा एक तो हम लोग क्यों भागेंगे, हम लोगों ने गलत तो किया नहीं है. तो एक्चुअली मैंने एक कहानी लिखी थी अपने लिए अर्ली 90s में, जिसमें के क्लाइमैक्स टीवी स्टेशन में था. बहुत ही सिमिलर था. टू कैरेक्टर्स टेक ओवर अ टीवी स्टेशन एंड देन दे स्टार्ट कम्युनिकेटिंग, एंड बिकॉज दे हैव गॉट इट कवर्ड विद अ गन, उन्होंने मतलब कोई एंटर नहीं कर पा रहा है, तो वो एक 2-3 घंटे तक उनको मिल जाता है खुला बोलने के लिए. तो वो एक बहुत ही छोटा सा आइडिया मैंने लिखा था, एंड इट वाज इन माय हेड मोर देन एनीथिंग एल्स. Way before रंग दे बसंती. तो मैंने मेहरा को बोला, यार यार उसका क्लाइमैक्स अपन इसमें डाल देते हैं. सो आई सैट विद मेहरा एंड विद रेंजिल एंड वी रीवर्क दैट लास्ट 40 मिनट्स कि इंस्टेड ऑफ आफ्टर किलिंग भागने के बजाय वो लोग फेस करते हैं, एंड देन दे रियलाइज एंड देन दे गो इनटू द रेडियो स्टेशन एंड देयर दे डू गेट किल्ड. फाइनली दे डू गेट किल्ड, बट they make their point before they die. Yeah, I was just curious to know because it seems like you're a born storyteller. मतलब अगर आप एक किस्सा भी सुना रहे हैं तो one can tell that he is a storyteller, and after Tare Zameen Par you haven't directed anything. And I find it hard to believe that you don't have these stories that you really want to tell. Is it like a conscious? No, I love filmmaking. और एक्चुअली मेरी जो बचपन में जो मेरी जिंदगी कटी है, उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रहा था, जैसे गुरुकुल में सिखाते हैं ना, मेरी ट्रेनिंग वैसे हुई. क्योंकि मुझे कहानियां सुनने का बड़ा शौक था बचपन से. तो जो हमारी खाना बनाती थी उनका नाम था नसीम भी. तो जैसे उनका खाना वाना बंद होता था, हम लोग बोलते थे कहानी सुनाइए, शेख चिल्ली की कहानी सुनाइए, वो तो कुछ ना कुछ वो बंडल को कहानी सुनाती थी. हवा महल प्रोग्राम आता था रेडियो पे, वो हमेशा सुनते थे हम लोग. तो आई लव्ड हियरिंग स्टोरीज. तो जब मैं कुछ 5-6 साल का था, मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे घर पे लोग आते हैं कहानी सुनाने के लिए अब्बाजान को, माय फादर. तो राइटर्स, डायरेक्टर्स, दे कम टू पिच. कभी 5 मिनट का आइडिया होता है, कभी 3 घंटे की नरेशन होती है. तो मैं चुपके से कोने में बैठ के मैं उन कहानियां सुनता था. तो 5 बरस की उम्र से लेके 15-16 बरस की उम्र तक जितनी कहानियां अब्बाजान ने सुनी उतनी मैंने सुनी है. क्या बात है. हाँ. So initially I was very small and I used to hide behind the curtain, I remember. I'll show you also next time you come to the house, I'll show you where I used to hide. तो मैं छुप के सुनता था. Then अब्बाजान got to know. छुप क्यों रहे हो, सामने बैठो. तो I used to sit in front. Then what happened is 2-3 साल के बाद ना, जब मैं 8-9-10 बरस का हो गया, तो कहानी जब मैं सामने बैठने लगा तो फिर कहानी खत्म हुई तो मुझे भी पूछते थे, क्या भाई तुमको कैसी लगी, इन अ वेरी पेट्रोनाइजिंग वे कि यार ये 6 साल का बच्चा हमको क्या समझाएगा. तो मुझे तो लगता था मैं ही हूँ भाई, अब मेरा वक्त है, अब मैं इन लोगों को समझाऊंगा कि इसको कहानी में क्या कह रहा हूँ.
The testing crowd that you're talking So about. I was a very verbal kind. I used to fight with them, and I used to say, "ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है." So after 2-3 years, I realized that one day my mother came to me, and she said, "सुनो, वो Thursday को narration है और अब्बा जान ने कहा है कि तुम भी बैठो." So I was like, "Oh, now he wants me to sit for the narration." थोड़ा मेरा promotion हुआ है. तो मैंने इतनी कहानियां सुनी है ना जहान, और इतने डिस्कशंस में मैं बैठा हूँ, और उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं आगे चल के फिल्मों में काम करूंगा, फिल्में बनाऊंगा. नहीं, आई वाज इंटरेस्टेड इन स्टोरीज, एंड देन लेटर ऑन आई रियलाइज दैट, नाउ आई रियलाइज कि यार वो जो ग्राउंडिंग थी मेरी, वो एक्चुअली वो जैसे गुरुकुल में हम सीखते हैं, आई वाज बीइंग ट्रेन्ड लाइक दैट. और अब्बाजान चचाजान की जो फिल्में बनती थी, 2 रील बन गई, 3 रील बन गई, तो हम तो देखते रहते थे ना कि इतना में ट्रायल है 2 रील का, हम लोग भाग के जाके देखते थे. अब 2 रील जब आप देखते हो, और 8 रील देखते हो, और 16 रील और 18 रील में आपकी फिल्म कंप्लीट होती है, तो बीच में जब गैप्स भी देखते हो ना आप, ब्लैक पीसेस होते थे. यूज्ड टू पुट ब्लैक पीस, जहां सीन शूट नहीं हुआ वो ब्लैक पीस आता था 3 सेकंड्स का. सो यू कम टू नो कि यहाँ पे गैप है, कुछ आने वाला है. But what happens is you start learning how connections are made, how things are falling into place, what is working, what is not working. So जब नॉर्मली कोई बंदा फिल्म स्कूल जाता है, उसको एडिटिंग सिखानी पड़ती है ना. मुझे सिखानी, मैं तो बचपन से मैं वही कर रहा हूँ. मेरे घर में नागरा होता था, तो हम लोग I've recorded sound, I've done so many things. So Mansoor and I used to constantly be doing मस्ती. हम लोग फिल्में बनाते रहते थे. Mansoor had a video camera, हम लोग शूट करते रहते थे. Mansoor was a very खुराफाती माइंड. मंसूर जो अब है और तब था, उसमें जमीन आसमान का फर्क है. आप लोगों ने डेनिस द मेनिस पढ़ा है? कैल्विन एंड हॉब्स पढ़ा है? तो मंसूर वाज कैल्विन एंड डेनिस कंबाइंड. डेंजरस पर्सन. तो उनके घर पे बड़ा सा बंगला है उनका. तो मंसूर ने डिसाइड किया था कि हम लोग को पूरा घर जो है, कौन से कमरे में कौन क्या बात कर रहा है हमको सुनना है. तो मंसूर एंड आई वेंट टू चोर बाजार. वहां पे हमने वायर खरीदा, माइक्स खरीदे, ड्रिल्स खरीदे, एल्यूमिनियम के पट्टियां खरीदी, और पूरे घर में होल होल करके वायरिंग डाल के, मैं मजाक नहीं कर रहा. That is epic. That is This is epic. the movie itself. हर कमरा में एक माइक था. बड़ों पे स्पाइंग कर रहे हो. और मंसूर और मैं तारिक भाई के कमरे में बैठते थे, और हमारा कंसोल वहां था. किचन में क्या बात हो रही है, टक. चशनान के बेडरूम में क्या बात हो रही है, हमारी ग्रैंडमदर अम्मा क्या बोल रही है. तो वी कुड हियर 8 रूम्स व्हाट्स हैपनिंग. Wow, this is like CCTV. स्पाई रूम कंट्रोल्स. स्पाई रूम कंट्रोल. Actual practical knowledge. और मंसूर जो है, वीडियो में हम लोगों ने बहुत फिल्में बनाई थी. तो मतलब आई मस्ट हैव बीन 6 years old or something. तो एक फिल्म थी, आई रिमेंबर, के नुज़त जो है वो घर में आती है शॉपिंग वॉपिंग करके, एंड आई एम अ थीफ हु इज हाइडिंग इन द हाउस. तो अभी थीफ कैसे बना है? तो आई हैड अ रुमाल टाइड अराउंड माय दिस थिंग, एंड आई हैड अ हैमर एज अ गन. So cute. तो ऐसा हम लोगों ने बहुत मस्ती की. सो ऑल दैट ना, समवेयर और द अदर, आई थिंक, बेशक. ended up helping me in learning the process as a kid. This is so beautiful. I thought this is a nice time to see, look back at this photo. Oh, wow. Yeah, that's Imran. Yeah, that is Imran. I don't know if you guys can see it, but we'll pass it around. It's very cute. This is आपको याद है ये कब? Some family function, I'm assuming. Yeah, it'll be a family get together. My aunt is there, Badi Pijan. Yeah. She's now 101 or something. That's her. And this is Farat, my sister, my mom, dad, and Choti Pijan. So these two are the sisters of my father. And this was in Nasir Saab's house. Yeah, this is, I think, 80s. Oh, wow. Oh yeah. Guys, this photo. Okay, Moses, thank you so much for allowing me ये to कहाँ use से मिला this photo photo. यार? Moses Sapir के collection से है. He is Wow. Bachchan Saab's one of his biggest fans. Me, Salman, I Bachchan sir. love it. Look at that. सलमान का बहुत Such कमाल expression, एक्सप्रेशन है. He's got Where a is this? $1 million expression. You know, this looks like one of his हम world लोग ने tours. नहीं, this is Wembley Stadium. Family Street. Oh, लंदन wow. में वेम्बली स्टेडियम है ना, वहां पे हम लोगों ने शो किया था. Guys, you are laughing at these. सलमान One is giving second. अंदाजा अपना. Yeah. But I
I'll show you some more, some really because see, guys, everyone talks about this cricket film called Lagan, but for me, the original cricket film will always be Awwal Number. अरे Oh यार my god, that's such a great. It doesn't get enough credit, but what a photograph this Yeah. is, you and Dev Saab. oh this is a great photo I have to Yeah, say it's a stunning photo. It's a very pretty photo. हाँ And then next question you know who this is No. this is Nasir's son Oh, this is Imad. yeah Imad. no elder one Imad Imad. Imad and Imran I think दोनों का बर्थडे साथ में था या नजदीक था या कुछ तो था Something. this is Nasir's son Imad you know Imad Yes. आप फिल्म रोल्स देख के 3 सेकंड गैप देख के वहाँ से एडिटिंग ऑलमोस्ट सीख गए थे। तो उससे रिलेटेड मेरा एक छोटा सा सवाल था कि यू बीन इन द फिल्म्स फॉर ऑलमोस्ट 40 इयर्स नाउ, तो आपने टेक्नोलॉजी इवॉल्व करते हुए देखी है तब से अभी तक, और अब तो ऐसा लग रहा है बहुत रैपिडली इवॉल्व हो रही है। तो इज देयर एनी पीस ऑफ टेक्नोलॉजी वेदर इट्स इन राइटिंग, शूटिंग, एडिटिंग व्हिच स्टिल ब्लोज योर माइंड दैट यू कांट बिलीव? जैसे मी ऑफ कोर्स बोर्न इन द फोन जनरेशन, पर मुझे अभी भी अजीब लगता है कि आजकल जो जेन जी किड्स हैं वो एडिटिंग भी सिर्फ अपने आईफोन पे कर लेते हैं। हाँ। मुझे तो अभी लगता है कि लैपटॉप खोल के एडिट करना है। True. Yeah, आजकल he लोग ऐसे said शूट reel करके sometime back, and I have to Yeah. at some point say to my audience, जिस reel की आमिर खान बात कर रहे हैं ना, वो 1000 फुट की रील होती है Oh, really? Yes. हाँ 2 reel देखता था, 3 reel देखता था. I'm like, I have वो to explain 1000 to फुट you. की रील होती थी और it used to run for 10 minutes 1000 feet roughly is 10 minutes And the videos he तो- made at home would go on reels now. But the crazy part is none of us thought about those reels anyway. We didn't- thought yeah, about yeah, these reels. हम connected. Yeah. because आप लोग फिल्मों से हो Yeah. No, but that's a great question because basically the movies of today are not keeping up with the change in format, because see, the technology has now come to a place where we're watching everything on our phones Correct. and in our hands. We're still expecting people to go to the theater to watch stuff. Do you think Correct. technology has a role to play, and do we need to understand that better? I think so. So there's lots happening. I think इंसान खुद बदल रहा है. Human beings are changing. हम लोग जो थे आज कौन सी रेट है 2025 है ना, रफली 2005 में स्मार्टफोन आया. जी हाँ. स्मार्टफोन तो आई थिंक ये 20 सालों में हम लोग में बहुत चेंज आया स्मार्टफोन के आने से. तो स्मार्टफोन के पहले फोन था और आप बात करते थे और वो इंस्टेड ऑफ बीइंग कनेक्टेड टू अ लाइन यू हैड इट इन योर हैंड. बट जब स्मार्टफोन आया ना तब हम लोग की लाइफ थोड़ी चेंज हुई है. Consumption. कंजम्पशन चेंज हुआ है. फॉर एग्जाम्पल स्मार्टफोन के आने से और उसके बाद फैलने से तो बहुत ज़्यादा लोग अब फ़ोन में खोए रहते हैं. तो जब आप फ़ोन में खोए रहते हो, एक चीज़ ऐसी है जिसमें आप खोए रहते हो जो पहले आप नहीं, आपका एक भी सेकंड इसमें नहीं जाता था, अब आपके 6 घंटे इसमें जा रहे हैं. तो जाहिर है आप में कुछ ना कुछ तो चेंज आया, कुछ ना कुछ तब्दीली आई है. सबसे बड़ी तब्दीली है कि आप ऊपर नहीं देख रहे हो, आप अपने आसपास नहीं देख रहे हो, आप ना अपने परिवार को देख रहे हो, ना अपने घर को देख रहे हो, ना अगर आप गाड़ी में बैठे हो तो आप जो सफर पे जा रहे हो, ना आप बाहर देख रहे हो कि कहीं नहीं, आप सिर्फ इसमें खोए हुए हो. सो अकॉर्डिंग टू मी दैट हैज चेंज्ड अस. और उससे क्या हुआ है कि हम लोग का अटेंशन स्पैन कम हुआ है. अब हम लोगों को चीज़ें बहुत जल्दी चाहिए और उसमें अगर ज़रा भी हमको लगे कि यार ये बोर हो रहा है, हम आगे बढ़ते हैं. हमारे पास पेशेंस बिल्कुल नहीं है. एक वक्त था जब टू गेट हैप्पी हॉर्मोन्स इन अस हम जाके फिल्म देखते थे, उसमें 2, 2.5, 3 घंटे लगते थे, या हम कोई गेम खेलते थे, क्रिकेट खेल दिया उसमें पूरा दिन लगता था, या टेनिस खेल लिया उसमें 2 घंटे लगते थे. तो आपको खुशी पाने के लिए टू गेट सेटिस्फाइड आपको 2-3 घंटे लगते थे, अब आपको 2 सेकंड लगते हैं. आपने एक बिल्ली को लटकते हुए देखा, आप बहुत खुश हो गए. हाँ, बिल्ली के वीडियोस तो बहुत अच्छे होते हैं. तो खैर आई एम जस्ट सेइंग कि उसमें होता क्या है कि आप 10-10 सेकंड में आप सेटिस्फाई हो रहे हो, और जिस चीज से आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो आप उंगली में उसको हटा रहे हो. तो आपकी रियल लाइफ में अभी मतलब इट हैज इम्पैक्टेड अस. फॉर एग्जाम्पल मैंने थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को कह रहा था कि मैंने बहुत सारे ऐप्स अपने फ़ोन से निकाल दिए. वो सारे ऐप्स जो खामोखा मेरा टाइम वेस्ट करते हैं. तो एक वक्त था जब मैं दिन में या तो मैं मतलब जो काम वाम कर रहा हूँ, शूटिंग वूटिंग, बट जो मैं गाड़ी में ट्रैवल कर रहा हूँ या जो भी बीच में खाना खा रहा हूँ, फ्री टाइम है, मैं हमेशा पढ़ता था. आई वॉज ऑलवेज रीडिंग. एक सेकंड नहीं जाता था जब मैं पढ़ता नहीं था.
और मतलब बचपन से अम्मी बोलती थी कि कितना पढ़ रहे हो तुम, खाने के टाइम पे तो बुक छोड़ो. इट वाज लाइक दैट. सो आई एम अ रीडर. स्मार्टफोन आने के बाद मेरा रीडिंग आधा हो गया, हाफ. मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो पता नहीं बाकी लोगों का क्या हुआ होगा. तो हम लोग डेफिनेटली बदल चुके हैं एंड वी हैव चेंज्ड एज ह्यूमन बीइंग्स. यार पहले आप थिएटर में फिल्म दिखाते थे, आपकी कैप्टिव ऑडियंस होती थी. मैं थिएटर में आया, अब मैं सिर्फ स्क्रीन देख रहा हूं और मुझे या तो कोई रोता हुआ बच्चा डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, बाकी मुझे कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. अब मेरे जेब में फोन है, पूरी दुनिया मेरे जेब में. तो मैं अभी मतलब कैप्टिव ऑडियंस नहीं हूं. मेरी ऑडियंस कैप्टिव बिल्कुल नहीं है. वो हजारों चीज एक साथ कर सकती है. जब मैं उनको कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा हूं, वो फोन में देख रहे हैं, उन्होंने फोटो डाला है, उस पर कितने लाइक्स आए हैं, कितने लाइक्स नहीं आए हैं. हजारों चीजें चल रही हैं, ग्रुप चैट्स में चीजें एक्सचेंज हो रही हैं. सो आप अलग ऑडियंस से बात कर रहे हो आज. मेरी ऑडियंस कैप्टिव ही नहीं है, नॉन कैप्टिव मतलब डिस्ट्रैक्टेड ऑडियंस है. मैं तो कर्तव्य दिखा ही रहा हूं, मेरे पीछे हजार लोग और, कोई लाल दिखा रहा है, कोई ब्लू दिखा रहा है, कोई येलो दिखा रहा है. तो मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट भाई मुझे देखो, क्योंकि वो उसमें पूरी दुनिया है, पूरी यूनिवर्स है. सो यू आर टॉकिंग टू अ डिस्ट्रैक्टेड ऑडियंस टुडे. भले वो ऑडियंस थिएटर में नहीं है, घर पे, फिर भी डिस्ट्रैक्टेड है. आपका ध्यान कहाँ है आजकल? सो वी आर चेंजिंग एज ह्यूमन बीइंग्स एंड फिल्म मेकर्स जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, दे हैव टू रियलाइज कि भाई मेरी ऑडियंस आज कैप्टिव नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड है. अब डिस्ट्रैक्टेड ऑडियंस को कहानी कैसे सुनाना है, दैट यू हैव टू फिगर आउट. अब कौन सा, अब I've heard my That you have writer to figure friends out. talk about this, that they are encouraged to write Yeah. work that the audience will consume while सर multitasking. ये Passive फ्रेज आ गया आजकल, What इट्स is the कॉल्ड phrase? सेकंड स्क्रीन व्यूइंग. तो हाँ आजकल ऐसे लोगों को बोल रहे हैं कि राइट योर स्क्रिप्ट इन अ वे कि अगर ऑडियंस फोन के साथ भी देखे तो भी समझ में आना चाहिए. अगर आप कुछ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बना देंगे, ऑडियंस छोड़ देगी कि मैं तो फोन पे लगा, समझ में आया, मैं बंद कर दूं. तो सेकंड स्क्रीन व्यूइंग इज अ टर्म दैट इज Ambient एम्बिएंट viewing. व्यूइंग. तो ऐसे मतलब लोग ऐसे लिख रहे हैं और प्रोड्यूसर ऐसा कर रहे हैं कि मेक समथिंग दैट इज सेकंड स्क्रीन व्यूइंग फ्रेंडली, कि लोग नेट इंस्टाग्राम देखते देखते भी आपका शो देख सकते हैं ऐसा. बट दैट विल मेक इट वर्स, नो सर? इट वोंट. नहीं, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है यार, बिकॉज आई फील. अच्छा, दूसरी चीज ये कि आज की डेट में लोग सोचते हैं कि थिएटर में क्या, थिएटर के लिए क्या बना है, क्योंकि थिएटर में सिर्फ एक्शन ही चलता है. अगर एक्शन नहीं है तो मैं घर पे भी देख लूं, यू नो. of course. मतलब अगर बिग स्क्रीन स्पेक्टिकल नहीं है तो मैं फिर बिग स्क्रीन में क्यों देख रहा हूँ? मैं अपने घर पे आईपैड पे देख लूंगा, फोन पे देख लूंगा, टीवी पे देख लूंगा. सो देयर आर मेनी मोर चॉइसेस टुडे. सो दीज आर क्वेश्चंस दैट वील ऑल हैव टू collectively and individually answer for ourselves कि किस टाइप की फिल्म बननी चाहिए. मतलब क्या, मतलब इसके बाद अब सिर्फ एक्शन एडवेंचर फिल्में ही आएंगी? इज दैट व्हाट वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू एज एन ऑडियंस in cinemas? Because at home on OTT you can get drama, you can get comedy, you can get other things. So what is the big screen for? These are questions that we'll have to ask ourselves. मतलब ये सवाल ना सिर्फ फिल्म मेकर्स को अपने आप को पूछना है, लेकिन ऑडियंसेस को भी अपने आप को पूछना है कि भाई मुझे थिएटर में किस टाइप की फिल्में देखनी है. सिर्फ मारधाड़ की देखनी है तो फिर हम लोग सही जा रहे हैं. लेकिन अगर मुझे हर किस्म की फिल्म देखनी है, जो मैं एक दफा देखता था कि लगान भी है, लगान आज आप लगान बनाने जाओ, आपकी जान निकल जाएगी. इसमें एक्शन ही नहीं है, एंड में उसको स्टंप निकाल के मारना चाहिए. No, I don't think कुछ so. तो हो I think action. Lagan would still. Lagan is an experience. It was a spectacle. It is a spectacle. I think that film can be left. It would still, yeah. But you know what I was thinking, guys, is that because आपका अटेंशन ही कितना है जो आप 4 घंटे की फिल्म देखोगे? सर लेकिन नॉट जस्ट जॉनर, लाइक एक्शन ही नहीं, ओवरऑल व्हेन इट कम्स टू ये आपकी जो मूवीज है, हमने ना बचपन से देखते आ रहे हैं कि यू वर्क ऑन फ्यूअर मूवीज, यू नो. हमने हमेशा से देखा कि आमिर सर इज अ परफेक्शनिस्ट या मेथड एक्टर, एंड आई एम सेइंग दैट हैज इंस्पायर्ड अस एज आर्टिस्ट आल्सो कि हम एक तरीके से काम करें. अब जब इतना कंज्यूमशन ड्रिवन इकोनॉमी हो गया है ना कंटेंट में, कि भाई वही जो लोग को चाहिए वो बनाओ, उनका अटेंशन पकड़ के रखो, चाहे वो मूवी हो चाहे कुछ भी और चीज़ में हो. सो where do we draw the line? In the sense कि, you know, कि as people, as artists, where earlier Rang De Basanti could be made because someone had a vision, not because they were trying to cater to an audience. So that is how, you know, someone would like to operate. But somewhere I think we're living in times जहाँ पे everything is supposed to be economics or catering to the audience, और इनको पसंद नहीं आए तो मत करो, जल्दी जल्दी बनाओ, बहुत सारा बनाओ. So
as as someone who's done it differently, what would you tell us, or what would आई you वुड आई टेल यू व्हाट आई वुड देखो, मुझे क्या लगता है ना कि हर जनरेशन को लगता है कि इस वक्त जो हो रहा है वो कोई नया हो रहा है, पहले ये कभी हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है, वो साइकिल हर दफा होती रहती है। जो चीजें आज आपको एज अ चैलेंज लग रही हैं कि यार क्या बनाए, मतलब शुड वी कॉम्प्रोमाइज विद व्हाट आई वांट टू मेक, मतलब मुझे ये बनानी है लेकिन अब क्या थिएटर में ये चलेगी नहीं, तो थिएटर के लिए ये वो बना दो, ये स्ट्रगल हमेशा से है, हमेशा से है। जब मैं इंडस्ट्री में 35 साल पहले आया था तब भी यही स्ट्रगल था कि थिएटर के लिए क्या बनाएं, लोगों को क्या पसंद आएगा, कैसे लाएं थिएटर में लोगों को, ये हमेशा से स्ट्रगल रहा है और इसका कोई सही जवाब नहीं है। हर आदमी अपना जवाब ढूंढता है, तो मैंने अपने लिए अपना जवाब बहुत पहले ढूंढ लिया था। मुझे वो करना है जो मुझे अच्छा लगता है। अब मैंने ना उस वक्त ये सोचा कि ऑडियंस को कैसे लगेगी लगान, ऑडियंस को कैसे लगेगी तारे ज़मीं पर, ऑडियंस को कैसे लगेगी दंगल। अगर मैं सोचने बैठता तो फिर मैं ये फिल्में नहीं बनाता। सरफरोश कैसे लगेगी लोगों को, तो ना मैंने उस वक्त सोचा और ना मैं इस वक्त सोच सकता हूँ। आई एम ऑलवेज ड्रिवन बाय व्हाट आई फील एक्साइट्स द हेल आउट ऑफ मी। मतलब मुझे जो एक्साइट कर रहा है मैं वही, मुझे आते ही नहीं और कुछ बनाना। जो चीज़ मुझे एक्साइट नहीं करती है, आप मुझे बोल दो कि भैया ये 10,000 करोड़ कमाने वाली है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, हमारा मार्केट रिसर्च हो चुका है, आप ये फिल्म बनाइए, मैं नहीं बना पाऊंगा, मेरा उसमें दिल ही नहीं होगा, मैं बना ही नहीं पाऊंगा। शूटिंग पे मतलब आई विल कम ऑन सेट एंड लुक हियर एंड देयर, मुझसे होगा ही नहीं। तो ये स्ट्रगल मतलब मेरे हिसाब से ये हर जनरेशन फेस करता है और मतलब मैं तो 35 साल से इसी स्ट्रगल में हूँ और मुझे लगता है कि मैं अनफॉर्चुनेटली मेरी स्ट्रगल कभी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि मैं उस वक्त भी स्ट्रगल कर रहा था, अभी भी, क्योंकि मेरा चॉइस ऐसा ऑड होता है कि उस दौर की जो फिल्में चल रही हैं या कामयाब हो रही हैं, मेरी फिल्में कभी लाइफ में वैसे नहीं होती थी और ना आज है, बिल्कुल। तो मेरे लिए कोई खास फर्क नहीं हुआ है। आई एम ऑलवेज मेकिंग, आप देख लो आज क्या फिल्में बन रही, मेरी फिल्म अगली कौन सी आ रही है, सितारे ज़मीं पर, उसमें ना कोई एक्शन है, थप्पड़ भी नहीं उसमें, मतलब इट्स अ फैमिली एंटरटेनर, इट्स अ कॉमेडी, इट्स अ ह्यूमरस फिल्म एंड इट्स अ ड्रामा। एक्चुअली इट्स टॉकिंग अबाउट इंक्लूजन एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स। जैसे तारे ज़मीं पर एक ऐसी कहानी थी जो हमको बहुत कुछ बताती थी, सिखाती थी, हमको सेंसिटाइव, हमको रियलाइज होता था कि यार हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ये चीजें आपको 10 गुना ज्यादा मिलेंगी आई होप इन सितारे ज़मीं पर, बट विद कॉमेडी दिस टाइम, यू नो। तो अब एक्शन देखने जाऊंगा तो उसमें एक्शन नहीं है, बट दिस इज हाउ आई नो हाउ टू मेक फिल्म्स। आई ऑलवेज बिलीव्ड इन स्टोरीज और मुझे लगता है कि अल्टीमेटली कहानियां ही कनेक्ट होती हैं लोगों के साथ। और एक दौर होता है जब आप 1 साल 2 साल सिर्फ एक्शन 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 एक्शन, फिर बीच में एक्शन का दौर हट जाता है। मैं आपको रिमाइंड करता हूँ, जब मेरी गजनी आई थी ना, वो टाइम पे एक्शन फिल्में नहीं चल रही थी और मुझे बोला गया था कि एक्शन फिल्मों का दौर खत्म हो चुका है और अब आप एक्शन लेके आए हैं। तो मैं बोला मैं तो वैसे भी दौर को फॉलो नहीं करता हूँ। जब QSQ2 आई थी एक्शन चल रही थी, and then या बट व्हेन गजनी वाज कमिंग आउट इट वाज ऑपोजिट। opposite, yeah. बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हुई थी, एक्शन एक्शन, सब लोग बोल रहे यार बहुत ज्यादा एक्शन हो गया, हटाओ। तो इट्स अ साइक्लिक थिंग आल्सो, यू नो। एक्चुअली मुझे हम लोग थोड़ा, मेरी सोच थोड़ी अलग थी, तो मुझे कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट द स्ट्रीम स्विम करना पड़ा। जो मेरी चॉइसेस थी फिल्मों की, वो मार्केट की कभी होती नहीं थी। Yes. उनको लगता था ये पता नहीं क्या बना रहा है यार, ये दिल है के मानते नहीं बना रहा है, पता नहीं क्या अंदाज अपना अपना कुछ बना रहा है, ये यू नो। सो दे यूज्ड टू फील कि ये इसका चॉइस कुछ अलग है। और मुझे मार्केट से हमेशा पुशबैक मिलता था, ऑलवेज। तो लीप ऑफ फेथ आपको लेना पड़ा? नहीं, मुझे लीप ऑफ फेथ नहीं, मुझे प्रूव करना पड़ा, एक हिट के बाद दूसरी हिट, एक हिट के बाद दूसरी हिट। जब मेरी 8-10 हिट आ गई तो लोगों को यार कुछ तो सही कर रहा है, ये क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमको मार्केट को समझ में नहीं आता था कि इसकी फिल्में क्यों चल रही हैं। बट आफ्टर अ पॉइंट उनको लगा कि पता नहीं कुछ तो है, इसका चलता है भाई, ये परफेक्शनिस्ट है, ये परफेक्शनिस्ट है, कुछ तो परफेक्ट कर रहा है ये। आई एम टेलिंग यू, वो मुझे परफेक्शनिस्ट नाम दे दी क्योंकि मेरी फिल्म में ये परफेक्शनिस्ट है भाई। तो मैं सोच रहा हूँ परफेक्शनिस्ट इज कौन सा परफेक्शन। सो दैट्स बीन माय जर्नी विद ईच एंड इवन नाउ
Because they don't know how to box you, तो आपको perfection. मेरा कोई बॉक्स ही नहीं है, आप बताओ, आप हिस्ट्री ले लो ये पिछले 30 साल की और अब मेरे को बॉक्स में डालने की कोशिश करो. Yeah. सर इसमें से कौन सी मूवी थी, आप बोल रहे हैं हर मूवी में आपको पुशबैक करना पड़ा, कौन सी मूवी थी जिसमें सबसे ज्यादा पुशबैक सबसे कठिन रही बनाने में ऑफ योर पेन? एक्चुअली कठिन तो सभी रही हैं, बट जो टॉर्चरस एक जो रही है वो थी जो जीता वही सिकंदर. Oh, really? और टॉर्चर हुआ. I would not expect that. Why? वो फिल्म 2 दफा बनी है. तो पहली दफा जब वो बनी तो हम लोग ने कुछ 60-70 दिन हम लोग ने ऊटी और वो साउथ में जो भी हिल स्टेशन था, अभी मैं नाम भूल रहा हूँ. तो कोडी में हम लोग ने शूटिंग की थी और फिर ऊटी में भी की थी. 60-70 दिन हमने शूटिंग की थी. शूटिंग कंप्लीट हो गई, हम लोग सब वापस आ गए. मैं दूसरी शूटिंग के लिए कहीं था. मंसूर का 2 महीने बाद मंसूर का फोन आया. इनफैक्ट मैं ऊटी में था दोबारा, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, और मंसूर का फोन आया. उसने बोला कि सुनो, ही सेड देयर इज अ प्रॉब्लम. आई सेड व्हाट? ही सेड यार वो देविका का कैरेक्टर वर्क नहीं हो रहा. Now Devika was being played by another girl at that time. Not Pooja Bedi is the final cast, but there was another girl playing, and she was a wonderful girl and she was a very good actor. But Mansoor felt कि जो arrogance और जो slightly uppity feel चाहिए ना, वो मुझे इस लड़की से naturally नहीं मिल रहा है. She is a nice girl, you know. She's a good-hearted girl. मेरे को थोड़ी, you know, someone with a slight arrogance and all, which I'm not getting from her. So I said we can reshoot a few scenes. He said नहीं. मैंने कास्टिंग, गलती मेरी है, लड़की की नहीं है, मेरी गलती है. मैंने कास्टिंग रॉन्ग की है. ये लड़की को मुझे उस रोल के लिए लेना चाहिए था, नॉट इन देविकाज रोल और व्हाटएवर. तो ऐसे तो फिर हम लोग को देविका के सारे सीन रीशूट करने. आई सेड सारे सीन, तो मतलब जो 70 दिन का शेड्यूल था उसमें से 40% वर्क वाज ऑफ देविका, 40% वर्क वाज ऑफ आयशा जुल्का, मतलब एंड मी, एंड 20% वर्क वाज दूसरा वर्क था. तो ही सेड कि देविका के सारे सीन रीशूट करने हैं. तो ऐसे सारे सीन रीशूट. अच्छा, मुझे लगा था मैंने वो सीन बड़े अच्छे किए हैं. As an actor, oh my God. नहीं, कभी कभी होता है ना, आप करते हो, आपको लगता है यार अच्छा हो रहा है, ऐसा यू नो यू आर ऑन रोल, एकदम स्मूथली हो रहा है, और वो पूरा 70 डेज मुझे लगा मैंने एकदम कमाल का काम किया है. कट टू मंसूर बोल रहा है उसमें से 40% रीशूट करना है. ऐसे अरे यार मैं दोबारा कैसे करूं, एक दफा निकल जाता है आपसे, फिर आप यू नो ऐसे चलो कोई नहीं दोबारा करेंगे. तो हम लोग ने पूजा बेदी को कास्ट किया. तो बाकी के जो लास्ट के 20% है ना, उसमें वो जो 4 एक्टर थे, नाम लेना अच्छा नहीं लगता है, बट वो बहुत बदतमीज थे यार. हम लोग को बहुत तकलीफ दे रहे थे. तो मैंने मंसूर को बोला, सुन, जब 80% हम दोबारा कर ही ले रहे हैं तो इन 4 को भी निकाल देते हैं, पूरी दोबारा कर लेते हैं. इनको मैं दोबारा झेल नहीं सकता. तो पूरी फिल्म दोबारा बनी. Wow. पूरी कास्ट चेंज हो गई. पूरी कास्ट चेंज हुई, except you and the bicycle. except me and the bicycle. Except me and the bicycle and Kulji and Mamik was always there. तो उसमें बहुत I'm the weirdo because between you and Mamik, I had a crush on Mamik. No, all of us had a crush on Mamik. Mamik was the ideal elder brother, dependable, handsome, good in athletics. But that film मतलब बहुत तकलीफ हुई बनाने में. आपका क्वेश्चन क्या था एक्चुअली? मेरा ये था कि हाँ, ये था कि सबसे कठिन मार्केट वाइज पुशबैक करने में सबसे ज्यादा कठिन कौन सी मूवी थी? Like to explain to people, to producers, to everyone कि this film will work, trust me. Oh, every film. In the beginning of my career, हर फिल्म हम लोग को प्रूव करना था, पिच करना था कि भाई ये अच्छी बनेगी, ऐसी बनेगी, वैसे बनेगी. That was every film. Then after लगान थोड़ा मुझ पे प्रेशर कम हो गया, क्योंकि लगान इतनी अटपटी फिल्म थी, और उसके 2 महीने बाद दिल चाहता आई जो कंप्लीटली डायरेक्ट ऑपोजिट थी. तो वो जो ढम जो आई ना, उसके बाद आई थिंक मार्केट और प्रोड्यूसर लगा कि इसको ज्यादा सवाल मत पूछो, इसको करने दो. You know, the greatest thing about this time in the movies right now is the fact that you can watch some of your favorite films in the theaters because they've re-released. Cinema Ka Jadugar is the name of the festival. So all of our favorite films, whether it's Ghulam, whether it's Rang De Basanti, and all these films we actually just spoke about, they're all in the cinemas across 200 theaters in India at this point. And of course, we're very, very excited that we have this opportunity all over again.
was there ever any sort of a rivalry between the three Khans? Of course there was, yeah. मतलब इसमें आप क्या पूछ रहे हो? कभी झगड़े भी हुए हैं, आई थिंक मीडिया में तो काफी आए हैं झगड़े। तो मुकेश ने मुझे फोन किया कि यार वो लोग कर रहे हैं, तू भी करेगा तो अच्छा रहेगा, कि एवरीवन फील हैप्पी इफ ऑल द थ्री ऑफ यू आर ऑन स्टेज। तो ऐसा हाँ, आई विल डू इट। तो हम लोग ने आधे घंटा पहले बैठ के हम लोग ने वो छोटा सा स्किट बनाया जो हम लोग कर रहे थे। Typical Sangeet. वो रिहर्सल खत्म हुई और मैं बोला यार अब हम लोग तीनों एक साथ फिल्म कर सकते हैं। और वो सीन लोगों को बहुत पसंद है, आई नो। तो मुझे हर आदमी मिलता है आपका क्या सीन है, और जब भी मुझे बोलता है मुझे इरिटेशन होती है कि इसका गला मैं कौन सा एंगल से दबाऊं। इतना बुरा एक्टर हूं मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। इतने में सरोजी आई। What happened, Amir? The moment she asked me what happened, करके